Yes, sir. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Each of you are listening my voice. Hello. Yes, sir. Okay. जी sir. In the last lecture, I discussed with you people the first week, and that was contract. If you have any question related to that, you can ask. I have already shared the link of the recorded lecture and already uploaded on my YouTube channel. So if you have any question related to previous lecture, the house is open to ask. No sir, no. Okay. Uh, I have already shared my screen. So today I'll be discussing week number 2. You people have already, studied and discussed week number 2 as well. But in the previous lecture, as I told you, that I want to refresh in your minds that what are these things, because in law, each and everything is very interacted with each other. A word is used that is called synchronized. Each and everything in the law is very synchronized to each other. Uh, Today, I'll be discussing offer and acceptance. In the business law, we have these two terms. The first one is offer, and the other one is acceptance. The first one, offer, what does it mean? You people might already been familiar to this word. What offer is? ये बिजनेस की दुनिया में ऑफर किस चीज़ को कहते हैं? ये इस चीज़ का नाम है जिसमें when a person signifies to another his willingness to do or not to do a thing, uh, and with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he said to make a proposal. सादा जुबान में, आसान भाषा में ऑफर का मतलब ये है कि एक बंदा दूसरे को किसी चीज़ को खरीदने या बेचने के हवाले से मतलब वो फॉरवर्ड करें अपना कंसेंट. एसेंट का यहाँ पे मतलब अपना कंसेंट. जब आप अपना कंसेंट फॉरवर्ड कर लेते हैं किसी दूसरे बंदे को कि आप इस चीज़ पे विलिंग है कि करें कि ना करें, ये करना ना करना, दैट इज कॉल्ड an offer. We have a bookish definition. It says that when one person says to another person about his view to obtaining something or not to obtain something, that is the bookish definition. The very simple example, say there are two persons, say Ali and Abbas, they are two persons. Ali offers to sell his watch to be for RS, say $1,000. So in this case, Ali is making an offer to Abbas, right? So two persons are involved. The one person which offers his watch to person B. So A is making an offer. Now, other things that we have in the offer, there are some essentials. अच्छा, ये एसेंशियल्स बिजनेस लॉ में चीज़ें तो आसान होती हैं, लेकिन इनको रिमाइंड करना जहन में, मेमोरी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, जो भी हैं मेरे ख्याल में अगर वो उसको अपना माइक म्यूट करें तो बेहतर होगा. ओके, थैंक यू. जी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. देखिए, ये एसेंशियल्स का मतलब ये चीज़ समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
कि बिजनेस लॉ में अगर आप ऑफर करते तो उनके एसेंशियल्स क्या क्या होनी चाहिए। जिस तरह फॉर एग्जांपल, इसका आसान भाषा में मतलब ये है कि जब आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है ना, तो एडमिशन से पहले आपने क्या क्या चीज़ें करनी है ताकि वो आप उस एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाए। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर आपने बीबीए के लिए एडमिशन आपने किया है, तो एडमिशन से पहले आपने कुछ रिक्वायरमेंट की होगी, जिस तरह आपने टेस्ट दिया होगा, आप इंटरव्यू में अपियर होंगे, आपका जो है वो एक ख़ास परसेंटेज था, मतलब 45% या 40 या 50% से अबव परसेंटेज होना चाहिए था। तो वो सारे एसेंशियल्स थे फॉर योर एडमिशन। इसी तरह जब भी आपने बिजनेस की दुनिया में ऑफर किसी को करना है, तो ये चीज़ें एसेंशियल्स हैं, मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए। नंबर फर्स्ट, सो essentials of valid offer. The first thing in the offer that it must be expressed or implied. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अभी एक्सप्रेस का मतलब क्या है? It's offer which is made by words spoken or written. ये वो मतलब एसेंशियल चीज़ है या एसेंशियल्स है ऑफ वैलिड ऑफर, जिसमें आप जो है या तो ज़ुबानी कलामी या इन रिटन में जो है आप ऑफर करते हैं। कहते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल आप पे साइकिल भेजनी है या कार गाड़ी भेजनी है या चेयर भेजनी है, तो आप ये मतलब लफ्जन या इन रिटन आप कह दें, सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेस्ड, यू हैव एक्सप्रेस्ड योर ऑफर। इम्प्लाइड क्या मतलब है? इम्प्लाइड ऑफर का, इम्प्लाइड ऑफर अपीयर्स फ्रॉम द एक्शंस, कंडक्ट और पार्टीज, कोर्स ऑफ डीलिंग्स और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ये ना तो इन रिटन होता है ना लफ्जन होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है देखिए, एक्सप्रेस जाहिरन, इम्प्लाइड बातिन। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि से मैं अली को कहता हूँ कि क्या आपने मेरी गाड़ी खरीदनी है, तो वो सर हिलाता है, जिस तरह मतलब यस का एक खास किस्म का वो एक्शन करता है कि सर इस तरह हिला दिया, तो इसका मतलब ये है कि वो राजी हैं। तो एसेंशियल्स देखिए, अभी एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर में ये चीज होनी चाहिए, या तो एक्सप्रेस होना चाहिए या इम्प्लाइड होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लीगल रिलेशंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये दिस इज द सेकंड एसेंशियल्स, इट्स वन ऑफ द बेसिक एसेंशियल्स फॉर अ वैलिड ऑफर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द ऑफर मस्ट बी मेड इन ऑर्डर टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, otherwise there is no agreement. If an order does not give rise to legal obligations between parties, it is not a valid offer. मतलब क्या है? मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल किसी की शादी हो रही है, ठीक है, और मैं एक से अली को मैं बुलाता हूँ कि आप जो हैं शादी हो रही है, आप आ जाए, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ। या किसी की बर्थडे है तो मैं किसी को मतलब इनवाइट करना चाहता हूँ कि आप आ जाए। तो दिस इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है। ठीक है, इफ यू रिमेंबर मैंने आपको जो पढ़ाया था कि बिजनेस क्या क्या बिजनेस है और क्या क्या चीज़ें बिजनेस में नहीं आती। ठीक है, तो ये चीज़ जो है, अगर आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं कि आप मेरे किसी की बर्थडे है, मेरी बर्थडे है, आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ कि आप खाने पे आ जाए या हाई टी है उस पर आ जाए, सो दिस इज नॉट एन ऑफर इन द बिजनेस वर्ल्ड। ये ऑफर नहीं है, इसमें एक खास लीगल रिलेशंस होना चाहिए। ठीक है, ये एक आप समझे कि ये एक सोशल एक्टिविटी है, इट इज़ नॉट अ बिजनेस एक्टिविटी, राइट। सो इसमें यह है कि आप बाउंड नहीं हो जाते हैं, एक लीगल बाउंडनेस आप पे नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल मेरी बर्थडे पे आए या ना आए, इट विल बी ओके। अदर essential of the offer is definite and clear.
डिफिनेट एंड क्लियर का मतलब क्या है? डिफिनेट एंड क्लियर का मतलब ये है, दो मतलब है इसके। एक मतलब ये है कि अगर अली मुझे कहता है कि या मैं आपको से वो कहता है कि आसमान से मैं सितारे तोड़ के लाऊंगा, तो इट इज़ नॉट अ स्मार्ट थिंग, ये क्लियर नहीं है। अभी मुझे भी पता है कि वो आसमान से सितारे तोड़ के नहीं ला सकता। कोई दूसरा कहता है कि आ, आ, कोई दूसरा कहता है कि मैं से आपको अमेरिका से या यूके से मैं बहुत सारी चीज़ें लेके आऊँगा और आप अगर मुझे इतने पैसे दे दें। तो देखिए, दिस इज़ नॉट क्लियर, ठीक है? डिफाइंड भी नहीं है, क्लियर भी नहीं है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने को अगर कोई चीज़ें अमेरिका से, यूके से, चाइना से मैंने मंगवानी है, तो वो क्या चीज़ है, कितनी होनी चाहिए और किस कीमत पे होनी चाहिए, और डिलीवरी उनकी कब होगी। तो ये देखिए, इन सारी बातों में मैंने डिफिनीशन भी होगी कि स्पेसिफिक चीज़ से मोबाइल फोन्स है, चेयर्स हैं, मार्कर्स हैं, ये चीज़ें मैंने से मंगवानी है, तो स्पेसिफिक कर दी, अमाउंट भी बता दिया, क्वांटिटी बता दी, क्वालिटी बता दी, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। अदर essential of the valid offer is invitation. Invitation to offer is not an offer. It is different from an offer. इसका मतलब क्या है? अगर फिर आवाज़ें आ रही हैं, आप काइंडली अगर इसको म्यूट करें तो बेहतर होगा, ताकि सारे लोग मेरी आवाज़ को सही क्लियरली सुनें। देखिए, इनविटेशन टू ऑफर वो डिफरेंट है जो पहले हमने बात की, कि जिस तरह फॉर एग्जांपल लाइक आप किसी बंदे को बुलाते हैं अपने से शादी पे या बर्थडे पे, या कोई दूसरा इवेंट है, किसी का बेटा पैदा हुआ है या बेटी पैदा हुई है, तो वो जो है ये डिफरेंट है इस इनविटेशन टू ऑफर से। इनविटेशन टू ऑफर का मतलब ये है कि आपने से डिस्प्ले कर लिया कि आपके पास एक गाड़ी है, से विड्स गाड़ी है, वो आपने उस पर लगा दिए, एक पोस्टर लगा दिए कि ये गाड़ी मैंने बेचनी है। आप लोगों को इनवाइट कर रहे हैं आपकी ऑफर की तरफ कि मेरे पास विड्स गाड़ी है, मैं बेचना चाहता हूँ। देखिए, सिर्फ पोस्टर लगाना ये वैलिड ऑफर आपका नहीं है, ठीक है? सो इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट a legal thing. It is different from an offer, ठीक है? Say an invitation to offer, the person making the invitation does not make an offer, but only invites the other party to make an offer. इसमें ये होता है कि आप पोस्टर लगा दिए कि मैंने गाड़ी बेचनी है, और एक बंदा अगर उनको देख लेता है और वो चला जाता है, कहता है कि बस ये मुझे गाड़ी दे दे, कहता है कि यार मैंने जस्ट वो पोस्टर लगाया है, मैं लोगों को इनवाइट कर रहा हूँ कि वो यहाँ पे आए और वो लोग मुझे ऑफर दे, मतलब आप अभी आए हैं, आप मुझे ऑफर दे कि मेरी गाड़ी आपने कितने की खरीदनी है, ठीक है? सो इनविटेशन टू ऑफर सिंपली इज नॉट एन ऑफर। Do you have any question related to the first slide? It's offer. Sir, Yes. legal relations process. अच्छा, लीगल रिलेशन का मतलब ये है कि जिस तरह मैंने आपको बता दिए कि मैं आपको से आज मैं डिनर पे आपको इनवाइट करता हूँ, ठीक है? ये डिनर पे इनवाइट करना या से बर्थडे पे इनवाइट करना, ये कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता है, ठीक है? लीगल रिलेशन यहाँ पे इस तरह क्रिएट नहीं होता है। अगर मैं आपको दूसरे एंगल से अगर मैं आपको समझाऊं, लीगल रिलेशन तब बनेगा जब मैं आपको कॉल करूं, ये रिकॉर्ड पे आ जाएगा कि जो है मैंने आप पे गाड़ी भेजनी है, ठीक है? और आप से आ जाए मेरे घर और वो देख ले गाड़ी। अभी ये एक लीगल रिलेशन बन गए इन केस ऑफ ऑफर,
मैं आपको अभी ऑफर दे रहा हूँ कि आप मेरी गाड़ी से 12 लाख की है, मैं आप पे बेचना चाहता हूँ, आप मेरे घर आ जाएं। सो इट हैज़ क्रिएटेड अ लीगल रिलेशंस। बजाय इसके कि मैं कह दूं कि आप मेरे आपको मैं इनवाइट कर रहा हूँ, आप मेरे घर पे आ जाएं आज डिनर के लिए। सो ये डिनर के लिए बुलाना, ये सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बुलाना, ये कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता, मतलब आपको बाउंड नहीं करता, आप जाए ना जाए आप पे डिपेंड करता है। लेकिन जब आप, मैं आपको कह दूं कि मैंने से गाड़ी आप पे भेज दी 12 लाख की, आप आज मेरे घर आ जाएं और रात को तो आप या दिन को आप आ जाए और मेरी गाड़ी ले लें, आप भी एग्री कर गए। तो अभी देखिए ये एक लफ्जन मतलब हमने एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक ऑफर, और आपने एक्सेप्ट कर लिया, और अभी ये आप लीगली से बाउंड हैं कि आपने आना है। इलियास, जी सर। इज इट क्लियर? यस सर। Okay. Other questions from the house? I think it's clear. आगे जाते हैं टू सेकंड स्लाइड, रिवोकेशन और टर्मिनेशन ऑफ ऑफर। रिवोकेशन टर्मिनेशन दोनों का मतलब यह है कि आपने ऑफर को ख़त्म करना है। तो देखिए, एक तो आपने ऑफर दी, और एसेंशियल्स ऑफ ऑफर मैंने आपको बता दी कि ये एसेंशियल्स हैं, तब आपका ऑफर कंसिडर किया जाएगा कि आपका ऑफर ठीक है। अभी टर्मिनेशन आपने कैसे करनी है? रिवोकेशन टर्मिनेशन एक ही मतलब है कि आपने ऑफर को कैसे ख़त्म करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पहली चीज़ ये है कि जब भी आपने एक ऑफर ख़त्म करना है तो आपने एक नोटिस करना है, ठीक है। मैं आपको अगर से जिस तरह स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इदारों में इसी तरह होता है कि आपने एक बंदे को से हायर कर लिया अपने इदारे में, या से एक फैक्ट्री है उसमें एक आपने एक एम्प्लॉय हायर कर दिया, एक महीना गुजरने के बाद आपने देख लिया कि वो तो यार सही काम नहीं कर रहा है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसी तरह नहीं है, तो आपने उनको, अच्छा अभी ये जो कंपनी है और एम्प्लॉय है इसके दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। कंपनी वाले ऑफर देते हैं, जो एम्प्लॉय होता है वो एक्सेप्ट करता है, साइन कर लेता है, और काम शुरू हो जाता है। जब एम्प्लॉय काम करता होता है तो कंपनी एक महीने बाद वो खुश नहीं होती, कहती है कि यार वो जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो उसी तरह नहीं है। अभी क्या है कि टर्मिनेशन ऑफ ऑफर, जो ऑफर उन्होंने दी थी उनको वो टर्मिनेट करना चाहती है वो कंपनी। तो इसमें ये होता है कि वो नोटिस एक अपने एम्प्लॉय को भिजवा, ये बाउंड है कि वो नोटिस करे अपने एम्प्लॉय को कि चूंकि ये वजूहात हैं, और इन वजूहात पे मैं जो है ये कॉन्ट्रैक्ट जो था ये मैं ख़त्म करना चाहती हूँ, और ये वजह है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इट इज़ इम्पोर्टेंट, जब भी आपने एक ऑफर को ख़त्म करना है तो सबसे पहले आपने नोटिस भिजवाना है, नोटिस ऑफ रिवोकेशन। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि जो चीज़ें आपने ख़रीद ली, जब आप तक पहुंच गई, से आपने कुछ चेयर्स ख़रीदनी थी, आप तक जब पहुंची तो आपने देख लिया कि बहुत सारी कुर्सियाँ उसमें ख़राब है, तो आपने एक नोटिस भिजवाना है जिस कंपनी से आपने ली थी, नोटिस भिजवाना है कि ये जो कुर्सियाँ हैं ये चूँकि हमारा ऑफ़र मैंने इस बेस पे एक्सेप्ट किया था कि ये कंडीशंस होनी चाहिए, सही सलामत होनी चाहिए, तो ये तो ख़राब है, तो आपने उनको नोटिस भिजवाना है, ठीक है, इन ऑर्डर टू टर्मिनेट दिस ऑफर, और आपने फिर पेमेंट भी नहीं करनी। अगली चीज़ जो है वो लैप्स ऑफ टाइम है। इसमें यह है कि when the offer is kept open for a specified time period, it terminates if it is not accepted within that time period. आसान भाषा में यह है कि से मैं इलियास को कहता हूँ कि दिसंबर 31 तक आपके पास टाइम है, मेरे पास से 100 चेयर्स हैं,
और ये चेयर्स में आप को 31 दिसंबर तक अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं $5 ईच चेयर आप पे भेजूंगा। इसमें तो है कि 31 दिसंबर तक अगर इलियास मुझसे ये चेयर्स ख़रीदना चाहता है, इन रिटर्न मैं उनको देता हूँ कि 31 दिसंबर तक अगर आपने चेयर्स ख़रीदनी है तो ये कीमत $5 ईच चेयर ये फाइनल है। अभी आया 1 जनवरी, इलियास मेरे पास आया, कहता कि यार ये कुर्सियाँ मुझे दे दें। मैं कहता हूँ कि यार अभी तो कुर्सियाँ महंगी हो गई है, वो जो मैंने आपको बताया था वो तो 31 दिसंबर का बताया था, आप देख लें। जब वो देख लेता है तो कहता है कि अच्छा मैंने तो ये टाइम नहीं देखा था। तो इस बेस पे वो लीगली अभी मैं बाउंड नहीं हूँ कि उन पे मैं चेयर्स भेज दूँ। सो टर्मिनेशन ऑफ ऑफर इस बात पे हो जाती है कि 31 दिसंबर तक उन्होंने वो चेयर जो थी वो मुझसे नहीं खरीदी। थर्ड कंडीशन, फेलर ऑफ कंडीशन। जिस तरह मैंने आपको बात की कि चेयर्स अगर से मैंने इलियास ने मुझसे ख़रीदनी है और ये 31 दिसंबर तक मैं चेयर्स भिजवाता हूँ, जब वो उधर चेयर्स पहुंच जाती है तो वो उस कंडीशन में नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। इस बेस पे इलियास मुझे क्या करेगा, नोटिस भिजवाएगा कि ये चेयर्स तो उस तरह नहीं है जिस तरह मैं जो है मतलब डिमांड कर रहा था आपसे, ये तो सही सलामत नहीं है, इसमें कुछ फॉल्ट है। तो इसमें ये होता है कि ये ऑफ़र टर्मिनेट हो जाता है। अदर एग्जांपल इसमें ये है कि एक बंदा है वो ऑफ़र करता है एक अपने से मोटरसाइकिल को दूसरे बंदे पे 50,000 का। इसमें यह है कि हेलो, जी सर। अच्छा, फेलियर ऑफ कंडीशन हेलो, एक दूसरा, आवाज आ रही है सर? ठीक है। दूसरा एग्जांपल इसमें यह है कि कंडीशन रखी जाती है। एक तो ये जो मैंने पहले एग्जांपल दिया, दूसरा मैं ये उन्हें कहता हूँ कि से ये जो होते हैं बॉन्ड्स, ये आम जो हमारे यहाँ पे बिके जाते हैं बॉन्ड्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्राइस बॉन्ड्स स्पेशली, मेरे और इलियास के दरमियान ये एग्रीमेंट हो जाता है कि इलियास ये कहता है कि आमिर अगर आपका बॉन्ड निकल गया, मतलब से 50,000 का, तो आपने जो है मतलब मुझसे ये चेयर्स ख़रीदनी हैं $5 ईच। तो एक कंडीशन हमने रख दी है। मैं भी कहता हूँ कि चले ठीक है, इलियास के पास अभी चेयर्स हैं, कोई गाहक नहीं मिल रहा है, तो मुझे कहता है कि हाँ मेरा अगर आपका बॉन्ड प्राइस बॉन्ड निकल गया 50,000 का तो कुछ चेयर्स मुझसे खरीदे। मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, 50,000 का अगर निकल गए तो इसमें से मैं 30,000 की चेयर्स आपसे खरीद लूँगा। तो देखिए इसमें यह होता है कि अगर प्राइस बॉन्ड निकल गए, एक कंडीशन हमने रख ली, अगर निकल गया वेल एंड गुड, लेकिन अगर नहीं निकला, फेलियर ऑफ कंडीशन हुई, तो इसमें मैं बाउंड नहीं हूँ कि इलियास से मैं चेयर्स खरीदूँ। डेथ ऑफ इंसैनिटी, डेथ और इंसैनिटी, सॉरी डेथ ऑफ नहीं है, डेथ और इंसैनिटी ऑफ ऑफरर और ऑफरी। इसमें आता है कि एक दो बंदे हैं आपस में, उन्होंने एक ने ऑफर की है, दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, लेकिन जिसने ऑफर की थी वो या तो मर गए और या पागल हो गए। अगर मर जाता है तब भी ये टर्मिनेट ऑफर हो जाती है, और अगर पागल हो गया तब भी ये ऑफर खत्म हो जाती है उसी टाइम। अदर थिंग्स इन टर्मिनेशन ऑफ ऑफर इज रिवोकेशन बाय ऑफरी। देखिए एक ऑफर होता है, एक ऑफरी होता है। ये ऑफरी जो है ये जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, ये वो है। इसमें ये है कि ऑफरी जो है, से एक ऑफरर है
और एक ऑफरी है। ऑफरी भी रिवोकेट कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है। ये सिर्फ नहीं है कि ऑफरर के पास इख्तियारात हैं, नहीं, ऑफरी के पास भी है। अगर मैं इलियास से मैंने चीज़ खरीदनी है और से मतलब अभी मेरे पास करंटली उतने पैसे हैं नहीं, हालांकि मैंने उनको बताया था कि मैं आपसे चीज़ खरीदूंगा, लेकिन अभी मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं क्या करता हूँ, एक नोटिस में भिजवा दूंगा ऑफरर को। इसमें इलियास है ऑफरर, और मैं उनको बता दूंगा कि जो हमने पिछला किया था, आपने ऑफर किया था, मैंने एक्सेप्ट किया था, अभी मैं रिवोकेट कर रहा हूँ मेरे पास, और ये रीजंस हैं, इन रीजन के बिना मैं रिवोकेट करना चाहता हूँ, ख़त्म करना चाहता हूँ। काउंटर ऑफर, अदर थिंग्स इन टर्मिनेशन ऑफ ऑफर इज द काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर क्या है कि से इलियास ने वही चीज़ मुझ पे भेजने हैं, मैंने एक्सेप्ट किया है कि चले ठीक है। चीयर्स में बहुत सारे अकसाम होते, मैंने उनको बताया कि वो व्हील वाली चेयर्स मुझे चाहिए, और मैंने एक्सेप्ट किए। उन्होंने मुझ पे क्या कहा है कि 31 दिसंबर तक, 31 दिसंबर को मैं 50 चेयर्स आप पे $5 ईच मैं भेजूंगा। मैंने भी एक्सेप्ट किया कि चले वेल एंड गुड, ठीक है। जो ही 31 दिसंबर आए तो इलियास अभी मुझे कह रहा है कि नहीं, ये चेयर्स नहीं, ये चेयर्स मतलब वो व्हील वाले चेयर्स नहीं, ये दूसरे वाली चेयर्स मैं आप पे भेजूंगा, वो तो मेरे पास अभी नहीं है। तो इसमें यह है कि चूंकि हमारा स्पेसिफिकली उन्हीं चेयर्स पे बात हुई थी और उन्होंने एक काउंटर ऑफर, दूसरा ऑफर दिया है, तो काउंटर ऑफर जब भी होता है तो उसके लिए नई एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है, ठीक है। तो इस वजह से वो काउंटर ऑफर आया है दूसरे और चेयर्स का, तो मैं कहता हूँ कि नहीं, हमारी जो बात हुई थी वो पहले वो व्हील्स वाली चेयर्स की हुई थी। Other and the last and important thing and the termination of offer is subsequent illegality. देखिए, subsequent illegality का मतलब ये है कि एक चीज़ मेरे और आपके दरमियान से टोबैको है, सिगरेट्स हैं, से इलियास कहता है कि मैंने ये सिगरेट्स आप पे बेचने हैं। अभी सिगरेट एक लीगल चीज़ है यहाँ पाकिस्तान में, आप बेच सकते हैं और ख़रीदार ख़रीद सकते हैं। अभी मैं उनका से बिज़नेस कर रहा हूँ, इलियास ने कहा है कि यार ये ठीक है, आप 31 दिसंबर को जो है ये चीज़ें इतने मतलब डब्बे में आप पे बेचूंगा। मैंने कहा कि चले ठीक है, सही है। 29 दिसंबर को या 30 दिसंबर को गवर्नमेंट की तरफ से एक नोटिफिकेशन इशू किया जाता है कि वी हैव बैंड ऑल टाइप ऑफ टोबैको टू बी सोल्ड बाय द होलसेलर और रिटेलर्स एट्सेट्रा। तो देखिए, यहाँ पे गवर्नमेंट ने चूंकि एक नोटिफिकेशन इशू की है कि ये सारी चीज़ें अभी इलीगल है, तो जो ही गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन कर दिया, सारी चीज़ें, हमारा ऑफर जो भी था वो सब कुछ टर्मिनेट हो गई। So it was all about the offer and termination of offer. If you have any question related to termination of offer. सर जी अभी तो नहीं है, थोड़ा पढ़ते हैं फिर क्वेश्चन करता हूँ सर। जासिम, जी सर। ठीक है। सर वो जो अभी क्लास जो लिया है सर, वो मैं रास्ते में भी था और आज अभी बैंक में हूँ तो ज़्यादा तवज्जो नहीं किया, तो मैं आज पढ़ता हूँ वो, तो मैं भी कल आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ सर। ठीक है, कल पूछे, अगले लेक्चर में पूछे, लेकिन आपने समय तरीक़ाकार ये अपनाएं कि से इंशाल्लाह अगले वीक में मैं वीक नंबर 3 फिर शुरू करूँगा। तो वीक नंबर 3 में जो चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है तो वो थोड़ा सा पहले रीड आउट करें ताकि आपके लिए फिर आसानी हो क्वेश्चंस। सही है सर, थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन है? दे आर ओपन टू आस्क। Okay, moving to next topic, it's acceptance. Going through very quickly what it is actually giving consent to the offer.
एक्सेप्टेंस का मतलब यह है आसान भाषा में कि आप जो है कंसेंट का मतलब है रजामंदी आप शो करते हो ऑफरर को। मैंने आपको बताया एक ऑफरर है एक ऑफरी है। ऑफरर वो है जो चीज़ें से बेचता है, वो ऑफरर है। जो खरीदार है वो ऑफरी है। सो गिविंग कंसेंट टू द ऑफर, वो ऑफरर ने जो आपको दिया है ऑफर और ऑफरी ने एक्सेप्ट की, सो ऑफरी की तरफ से एक कंसेंट रजामंदी चली जाती है, एंड दैट्स कॉल्ड एक्सेप्टेंस। एसेंशियल क्या है? एसेंशियल्स इनके ये है कि एक्सेप्टेंस बाय ऑफरिंग। अभी देखिए जिस तरह मैंने आपको बात की कि वैलिड एक्सेप्टेंस क्या चीज़ है, ठीक है। वैलिड एक्सेप्टेंस ये है कि नंबर फर्स्ट एक्सेप्टेंस बाय ऑफरिंग कि विलिंगली ऑफरी जो है वो एक्सेप्ट करे। ये नहीं है कि वो कोई प्रेशर उस पर बंदा करे कि आप खामखा जो है इसको एक्सेप्ट करें, नहीं, दिस इज नॉट द वे। ऑफरी एक्सेप्ट द ऑफर विलिंगली। अगली चीज़ ये है कि ये एब्सोल्यूट होनी चाहिए और मतलब अनकंडीशनल होनी चाहिए। इसमें ये है अनकंडीशनल का मतलब क्या है? अनकंडीशनल का मतलब ये है कि in order to form a valid agreement, the acceptance must be absolute. If the offeree imposes any condition in his acceptance, it is not a valid acceptance but a counter offer. देखिए आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो चीज़ बेचनी है ऑफरर ने और ऑफरी ने जो चीज़ उनसे खरीदनी है, ये स्पेसिफिक होना चाहिए। ये कंडीशन उसमें नहीं होना चाहिए कि से मैं आप पे ये चेयर्स भेजूंगा, ये से व्हील वाले चेयर्स, लेकिन अगर ये 31 दिसंबर तक मेरे पास नहीं हुए तो ये वाली चेयर्स मैं आप पे भेजूंगा। तो देखिए इसमें तो कंडीशन आ गई। कंडीशन ये आई कि ये भी हो सकता है कि आपके पास ये चेयर्स ख़त्म हो जाए, क्योंकि ये चेयर्स मुझे चाहिए, आप मुझे दूसरी चेयर्स दे रहे हैं। सो यहाँ पे जो है ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, अनकंडीशनल होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कंडीशन आ गई कि ये चीज़ मेरे पास तब तक हो तब मैं भेजूंगा, ना हुए तो ये भेजूंगा। तो ये एब्सोल्यूट नहीं हुआ, ये इसमें कंडीशन भी आ गई। सो इसमें यह है कि एब्सोल्यूट होना चाहिए और अनकंडीशनल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। Other thing in acceptance, essentials of the acceptance is prescribed. Prescribed का मतलब ये जिस तरह फॉर एग्जांपल आप जाते हैं डॉक्टर के पास, वो चीज़ें प्रेस्क्राइब करता है कि ये मेडिसिन आपने यूज़ करनी। इसी तरह ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में भी प्रेस्क्राइब्ड होनी चाहिए चीज़ें, मतलब एग्रीमेंट में बातें लिखनी चाहिए कि कौन सा मटेरियल है, कितना है, कब पहुंचाना है, कीमत क्या होगी, कौन डिलीवर करेगा, कौन रिसीव करेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। और दीज आर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड एक्सेप्टेंस। अगली चीज़ है वो कम्युनिकेशन विद ऑफरर। एक देखिए अगर से अब रजामंदी शो करते हैं कि जो है इलियास ने मुझ पे 100 चेयर्स बेचनी है, वो कहता है कि आमिर आपने ये 100 चेयर्स मुझसे $5 ईच, ये चेयर्स आपने मुझसे ख़रीदनी है। मैं विलिंग हूँ, लेकिन दिल दिल में, मतलब अंदर अंदर बातिन में मैं विलिंग हूँ कि मैं ये चीज़ ख़रीदूँ, लेकिन ये तब तक जब तक मैं या तो इन रिटर्न उनको ना दूं या मैं उनको वर्बली ना बताऊं, ये जो है एक्सेप्टेंस नहीं होगी। एक्सेप्टेंस तब होगी कि जब मैं उनके साथ कम्युनिकेट करूं कि हाँ, कुछ रिकॉर्ड पे आ जाए कि हाँ मैं आपसे ये 100 चेयर जो है मैं खरीदना चाहता हूँ। इट वॉज ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। नो सर, नहीं है सर।
Okay. जी फिलहाल तो नहीं है सर। फिलहाल नहीं है, ठीक है, तो सर नहीं है इंशाल्लाह सर, सी यू नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा। नेक्स्ट क्लास में आप पूछें, और मैं ये अपलोड करके आपके साथ इसका लिंक भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूँ। शेयर करता हूँ। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर।